Good morning, everyone. Today we will study the new subtopic of Chapter 6, Life Processes, and the name of the subtopic is Transportation in Human Being. This is the part of biology in general science. In this video number 18, we will study about the transportation in human being. Now the question arises, what is the meaning of transportation? Transportation is the transfer of nutrient as well as waste material from one part of the body of the organism to the other part of the body of the organism. In other words, we may call transportation as a circulation also. And we know that in human being, the blood is the main circulatory fluid. The blood consists of a fluid medium which is called as the plasma, and blood plasma help in the transport of food, carbon dioxide, salt, nitrogenous waste in dissolved form. In this blood plasma, different blood corpuscles are found in the suspended manner. There are three types of the blood corpuscles are present in blood plasma in blood. First one is the RBC. Full form of RBC is the red blood corpuscles. This contains a red pigment in it which is known as the hemoglobin. Its main function is to carry oxygen to the different cells. Second one is the WBC. The full form of WBC is white blood corpuscles. This WBC helps to fight against infections and they keep our body healthy. Third is the thrombocytes or the blood platelets. These are helpful in the clotting of the blood. इस वीडियो नंबर 18 में हम अध्याय 6 जैव प्रक्रम के एक नए सब टॉपिक मानव में वाहन या परिवहन का अध्ययन करेंगे, जो कि जीव विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान का एक भाग है। इस वीडियो में हमें मानव में वाहन या परिवहन का अध्ययन करना है। इसको प्रारंभ करने के पहले हमें मालूम होना चाहिए कि परिवहन का मतलब क्या होता है। हमारे शरीर के अंदर जो उपयोगी पदार्थ या पोषक पदार्थ पाए जाते हैं तथा साथ ही कुछ वर्ज्य पदार्थों का निर्माण भी होता है। इन सभी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे परिवहन कहा जाता है। इसे दूसरे शब्दों में परिसंचरण भी कहते हैं। मानव शरीर के अंदर मुख्य परिसंचारी माध्यम जो है वो रक्त या रुधिर होता है। ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो कि भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में परिवहन करता है। रक्त के अंदर एक तरल माध्यम के रूप में प्लाज्मा पाई जाती है जो कि भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ, लवण का खुलित अवस्था में परिवहन करती है। इस प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं निलंबित अवस्था में पाई जाती हैं। पहले प्रकार की जो कणिका रहती है उसे लाल रक्त कणिका कहते हैं। इनके अंदर लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह मुख्य रूप से ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। दूसरे प्रकार की कणिकाएं जो रहती हैं इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की संक्रमण से रक्षा करने का कार्य करती हैं और हमें स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होती हैं। तीसरा प्रकार होता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स का, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं। For the circulation through blood, we need a pumping organ to push blood around the body, and the main pumping organ in our body is the heart. Second, a network of tubes to reach all the tissues. These are the blood vessels which are of 2 types. One is artery and the second one is the vein. Arteries are red in color. Their wall is thick and they carry pure blood from heart to the different organs, and
blood flow with a great pressure inside the artery. On the other hand, the veins carry impure blood from organ to the heart. The blood flow with a low pressure in the vein. They carry deoxygenated or impure blood. Their wall is thin. In this way, this artery and veins are get attached or get connected to the heart. And for this, a system in place to ensure that this network can be repaired if damaged. And as we know, whenever due to the internal problem, sometimes the blood vessels get ruptured, and at that time the bleeding occur. To prevent this, the blood platelets help in the clotting of the blood. They clot the blood and prevent the blood loss. In this way, this system is helpful in the maintenance of the network of the blood capillaries. जैसा कि हम जानते हैं कि रक्त एक परिसंचारी माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न पदार्थों का परिवहन हमारे शरीर में किया जाता है। इसके लिए हमें एक पंपन अंग की आवश्यकता होती है जो कि हृदय होता है, और वह रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सकने के लिए कार्य करता है। दूसरा होता है नलियों के परिपथ की आवश्यकता होगी जो कि रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। इस हेतु हमारे शरीर में दो प्रकार की वाहिनियाँ पाई जाती हैं। एक होती है धमनी, दूसरी होती है शिरा। धमनी हृदय से शुद्ध रक्त लेकर शरीर के रक्त के द्वारा परिसंचरण तंत्र की क्रिया को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए हमें एक पंपन अंग की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। इस हेतु हमारे शरीर के अंदर हृदय पाया जाता है। दूसरा, नलियों के परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके। हमारे शरीर में दो प्रकार की वाहिनियाँ पाई जाती हैं, एक है धमनी, दूसरी है शिरा। धमनियाँ हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों तक भेजने का कार्य करती हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है, इसके अंदर शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और रक्त काफ़ी दाब से प्रवाहित होता है, और इसके अंदर वॉल या पार्ट नहीं पाए जाते हैं। शिराएं जो रहती हैं वह अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक लाने का कार्य करती हैं। इनकी भित्ति पतली होती है, इनके अंदर अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, रक्त का दाब अपेक्षाकृत कम होता है और इनके अंदर वॉल्स पाए जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे होता है एक तंत्र जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। जैसे कई बार आंतरिक कारणों से कई बार हमारी रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं और रक्त बाहर निकलने लग जाता है। इस समय रक्त की हानि को रोकने के लिए रक्त पट्टिकाएँ या थ्रोम्बोसाइट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं जो कि रक्त की हानि को रोकने का कार्य करते हैं।